ضرورت ہے نا، وہ ضرورت صرف آپ پوری کر سکتی ہیں بھابھی. پلیز، ہاں پلیز، سچ کہہ رہی ہوں، پلیز آپ زین کو گود لے لیں، اس کی کفالت کریں. بھابھی مجھے پتا ہے آپ اسے سنبھال لیں گے، آپ اسے مجھ سے زیادہ پیار کریں گی. پلیز مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اگر مجھے آپ معاف کر دیں گی نا تو مجھے اللہ بھی معاف کر دے گا. پلیز. شاید میری سزا میں کچھ کمی آ جائے. تم جانتی ہو فبیہ، تم نے مجھے بہت دکھ دیا، مگر شاید وہی دکھ میرے رب کی طرف سے میرے صبر کا امتحان تھا. میں نے تمہیں معاف کیا فبیہ، تمہیں معاف کیا. آپ بس 2 منٹ رکے، میں ابھی زین کو لے کر آتی ہوں. ہیلو، کیسی ہے میری بیٹی؟ اور اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آج تو بہت مطمئن بھی ہوں. امی وہ کیا بات ہے، اتنی خوش لگ رہی ہو؟ کوئی خاص بات ہے لگتا ہے. زین اب میرا زین بن گیا. فبیہ نے مجھے زین دے دیا اور وہ چاہتی ہے کہ میں زین کی پرورش کروں. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. سچ کہہ رہی ہو؟ زین تمہارے پاس ہے؟ کیا کہہ رہی ہوں مہک؟ تو نے میرے بیٹی کی گود بھر دی. مہک، یہ میرے رب کا انعام ہے تمہارے لیے. امی میں زین کا ایسے خیال رکھوں گی جیسے وہ میرے وجود کا حصہ ہے، جیسے وہ میرا اپنا خون ہے. اللہ نے مجھے کچھ عرصے کے لیے محروم تو کیا تھا، لیکن اب زین کی صورت میں مجھے پھر سے جینے کا سہارا دے دیا. بیٹا، ماں کی ممتا کبھی جھوٹ نہیں کہتی. تم نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، اب وہ خوشیوں میں بدل رہی ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ زین تمہارے پاس رہ کے محبت، سکون اور تربیت پائے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ایک بہترین ماں ثابت ہوگی زین کے لیے. اچھا یہ بتاؤ، فبیہ نے زین کو تمہارے حوالے خود کیا ہے؟ وہ مان گئی، اب وہ کیسی ہے؟ اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی. فبیہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے امی، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے اچھے سے پیش آ رہی ہے. شامیر کی بات سنتے ہی آصف صاحب کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. وہ چند لمحوں تک خاموشی سے چابی کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ جو وہ سن رہے ہیں وہ حقیقت ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور برسوں سے دوبا ہوا دکھ آنسوؤں کی صورت باہر آ جاتا ہے. وہ بھری ہوئی آواز میں بس اتنا کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ سب میرے لیے کیا ہے. اس پر المیر آگے بڑھ کر باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے.
हमने आपको बहुत दुख दिया, आपकी मेहनत, आपकी इज्जत और आपके ख्वाबों की कदर नहीं की। उसीलिए हम तीनों ने फैसला किया कि सबसे पहले वो चीज़ वापस लाएंगे जो आपकी जान थी। शामिर भी सर झुकाकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमें एहसास हो गया है कि आपस की लड़ाइयों ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया और हम आपको कितना अकेला छोड़ आए थे। ये सुनकर आसिफ साहब गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि वो दुकान मेरी नहीं, तुम तीनों की इमानत थी, मगर तुम लोगों ने अपनी नासमझी में उसे खो दिया था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। उस लम्हे फ़ज़ा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जो अब तलखी की नहीं बल्कि सुकून की होती है। आसिफ साहब पहली बार अपने बेटों की तरफ शफकत भरी नज़र से देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो याद रखो, दुकान से ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरे का साथ है। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दिल ही दिल में अहद करते हैं कि अब वो न सिर्फ दुकान बल्कि अपने बिखरे हुए रिश्तों को भी संभालेंगे। और उसी उम्मीद के साथ आसिफ साहब पहली बार मुस्कुरा देते हैं, वो मुस्कुराहट जो आने वाले दिनों में उस घर और इस खानदान की तकदीर बदलने वाली होती है। आसिफ साहब की मुस्कुराहट देखकर तीनों बेटों के दिल जैसे हल्के हो जाते हैं। वो बरसों बाद अपने बाप के चेहरे पर वही शफकत और अपनायत देखते हैं जो बचपन में उनका सहारा हुआ करती थी। आसिफ साहब आहिस्ता आहिस्ता सोफे से उठते हैं, दीवार के सहारे खड़े होकर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि ये दुकान सिर्फ ईंटों और लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि इसमें मेरी जवानी की मेहनत, तुम्हारी माँ की दुआएं और तुम तीनों का मुस्तकबल जुड़ा हुआ था। मैं उस दिन अंदर से टूट गया था जब ये दुकान मेरे हाथों से निकल गई, क्योंकि मुझे लगा जैसे मैं तुम सबको कुछ देने के काबिल नहीं रहा। ये सुनकर शामिर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है कि अब्बा, हमने आपको कमज़ोर समझा, हालांकि असल में हम खुद कमज़ोर थे। हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी बुनियादें खो दें। अलमीर भी आगे बढ़कर कहता है कि आज हमें समझ आया है कि आपकी खामोशी नाराज़ी नहीं बल्कि टूटे हुए दिल की चीख थी। आसिफ साहिब कुछ लम्हे खामोश रहते हैं, फिर धीमे लहजे में कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, बस ये चाहा कि एक दिन तुम खुद समझ जाओ। अब अगर तुम वाकई बदल गए हो तो याद रखो, ये दुकान तभी चलेगी जब तुम तीनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामोगे, वरना मैं दोबारा यह मंजर देखने की हिम्मत नहीं रखता। तीनों भाई एक साथ सर हिलाकर वादा करते हैं कि अब इख्तिलाफ नहीं बल्कि इत्तेहाद उनकी पहचान होगा। इसी लम्हे आसिफ साहब शामिर के हाथ में चाबी वापस देते हैं और कहते हैं कि कल सुबह सबसे पहले हम दुकान जाएंगे, मैं नहीं हम बैठेंगे। ये जुमला सुनते ही तीनों बेटों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी फैल जाती है, क्योंकि आज सिर्फ एक दुकान वापस नहीं आई थी बल्कि एक बाप का एतमाद, एक घर का सुकून और एक बिखरा। अगली सुबह जब फजर की अजान की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजती है तो आसिफ साहब की आंख वक्त से पहले खुल जाती है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी साथ साथ जाग उठती है। वो वज़ू करते हुए बार बार दुकान की चाबी को देखते हैं, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहते हों कि ये सब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। नाश्ता करते वक्त तीनों बेटे खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मगर इस खामोशी में अब शर्मिंदगी और एहतराम शामिल होता है। जब वो दुकान पहुंचते हैं तो बंद शटर को देखकर आसिफ साहब चंद लम्हों के लिए रख जाते हैं। उनके जहन में माजी के वो दिन ताज़ा हो जाते हैं जब यही शटर रोज़ाना फजर के बाद उठता था और रिज़्क़ की उम्मीदें जाग उठती थीं। शामिर आगे बढ़कर शटर खोलता है तो धूल की एक हल्की सी तह फ़ज़ा में फैल जाती है। आसिफ साहब अंदर कदम रखते हैं तो दीवारों, काउंटर और पुराने शेल्फ को हाथ लगाकर जैसे अपनी जिंदगी के बिछड़े हुए हिस्सों को छू लेते हैं। उनकी आवाज़ भर आती है और वो कहते हैं कि यहाँ मैंने तुम तीनों के मुस्तकबल के ख्वाब बुने थे, मगर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें सिर्फ काम सिखाया, एक दूसरे की कदर करना नहीं सिखा सका। ये सुनकर इल्मीर कहता है कि अब्बा, अब हमें समझ आ गया है कि असल विरासत दुकान नहीं बल्कि आपकी सिखाई हुई मेहनत और ईमानदारी है। आसिफ साहब वो तीनों को अपने करीब बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने वाकई मुझे खुश करना है तो याद रखो, इख्तिलाफ आएंगे मगर एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर। उस लम्हे दुकान में एक नई शुरुआत की खुशबू फैल जाती है, जैसे बरसों की वीरानी के बाद वहां फिर से जिंदगी लौट आई हो। और आसिफ साहब दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्लाह ने न सिर्फ उनकी दुकान बल्कि उनके बिखरे हुए रिश्तों को भी दोबारा आबाद कर दिया है। चंद ही दिनों में दुकान की फ़ज़ा बदलने लगती है। सुबह सवेरे शटर उठता है तो आसिफ साहब खुद
काउंटर के पीछे खड़े होकर गाहकों को सलाम करते हैं और तीनों बेटे उनके अर्द गिर्द ऐसे मसरूफ दिखाई देते हैं जैसे बरसों से यही मामूल हो। मगर इस बार फर्क ये होता है कि हर फैसला मशूरे से होता है और हर इख्तिलाफ बातचीत से हल किया जाता है। एक दिन एक पुराना गाहक दुकान में दाखिल होकर आसिफ साहिब को देखता है तो खुशी से कहता है कि आज तो दुकान में फिर से जान आ गई है। ये सुनकर आसिफ साहब मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि जान तो हमेशा थी, बस बिखर गई थी, अब मेरे बेटों ने उसे फिर से जोड़ दिया है। शाम को जब हिसाब किताब बैठते हैं तो शामिर अपनी गलती मानकर माजरत करता है और अलमीर फौरन उसे समझ आता है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आसिफ साहिब ये मंजर देखकर दिल ही दिल में दुआ करते हैं कि ये हम आहंगी कायम रहे। वो बेटों को बताते हैं कि उसल कारोबार मुनाफा से नहीं बल्कि एतमाद से चलता है और अगर घर में सुकून हो तो रिज़्क खुद रास्ता बना लेता है। उसी दौरान आसिफ साहब की तबीयत कुछ बेहतर होने लगती है। डॉक्टरों की दवाओं के साथ साथ अब उन्हें अपनों की तौजह और मोहब्बत का सहारा भी मिलने लगा था। रात को घर लौटते हुए वो तीनों बेटों के साथ बैठकर पुरानी बातें करते हैं, हंसते हैं, कभी खामोश हो जाते हैं, मगर इस खामोशी में अब फासले नहीं बल्कि इत्मीनान होता है और यूं आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ दुकान बल्कि एक टूटा हुआ खानदान भी दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने लगता है। जहां माजी की तलखियां सबक बन चुकी थीं और मुस्तकबल उम्मीद से रोशन दिखाई देता था, वक्त गुजरने के साथ साथ इस घर और दुकान दोनों में एक नई मजबूती आती चली जाती है। आसिफ साहिब अब रोजाना दुकान पर आकर सिर्फ कारोबार नहीं देखते बल्कि अपने बेटों के रवैयों पर भी नजर रखते हैं। वो महसूस करते हैं कि अब शामिर में जल्दबाजी के बजाय तहमिल आ गया है। अलमेर बात करने से पहले सुनना सीख गया है और तीसरा भाई जो पहले खामोशी में उलझा रहता था अब जिम्मेदारी से फैसलों में हिस्सा लेने लगा है। एक दिन अचानक दुकान में मंदी आ जाती है और नुकसान का खदशा पैदा होता है। तीनों भाइयों के दरमियान एक लम्हे को फिर से तलखी की लहर दौड़ती है, मगर इस बार आसिफ साहिब सख्ती के बजाय नरमी से कहते हैं कि मुश्किल वक्त असल इम्तिहान होता है। खुशी में तो सब साथ होते हैं मगर नुकसान में साथ रहना ही असल कामयाबी है। ये बात तीनों के दिल में उतर जाती है और वो मिल बैठकर हल निकालते हैं। कुछ गैर ज़रूरी अखराजात कम किए जाते हैं, गाहकों से ताल्लुक मजबूत किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने लगते हैं। एक शाम दुकान बंद करते वक्त आसिफ साहब आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। तुम लोगों ने मुझे सिर्फ दुकान नहीं लौटाई बल्कि मेरा भरोसा भी वापस कर दिया है। ये सुनकर तीनों बेटे जज्बाती हो जाते हैं और पहली बार खुलकर अपने बाप के गले लगते हैं। उस लम्हे आसिफ साहब को महसूस होता है कि जिंदगी ने उन्हें एक और मौके दिया है, ऐसा मौके जिसमें न माजी की तलखी गालिब है और न मुस्तकबल का खौफ बल्कि एक पख्ता अज़्म है कि अब यह खानदान इख्तिलाफ से नहीं बल्कि इत्तेहाद से पहचाना जाएगा। और यही एहसास इन सब के लिए सबसे बड़ी कामयाबी बन जाता है। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे आसिफ साहब अपने बेटों को गौर से देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये वही बच्चे नहीं रहे जो कभी ज़द अना और गलत फहमियों में उलझे रहते थे। अब उनके चेहरों पर संजीदगी और आंखों में जिम्मेदारी झलकने लगी थी। वो आहिस्ता से कहते हैं कि इंसान की असल आजमाइश सिर्फ गर्ब या अमीरी नहीं बल्कि अख्तियार और इत्तिफाक में होती है। जब इख्तियार मिले तो गुरूर न आए और जब इख्तिलाफ हो तो रिश्ता न टूटे। शामिर सर झुकाकर कहता है कि अब्बा, हमें ये बात समझने में देर लग गई मगर आज हमें अंदाज़ा हो गया है कि आपकी खामोशी में कितनी गहरी तरबियत छिपी हुई थी। अलमीर भी एतराफ़ करता है कि अगर उस दिन दुकान की चाबी वापस न लाते तो शायद हम हमेशा एक दूसरे से दूर ही रहते। आसिफ साहिब मुस्कुराकर कहते हैं कि अल्लाह ने दिलों को जोड़ने का काम तुम्हारे हाथों से लिया है, उसी लिए याद रखो रिज़्क का वादा अल्लाह का है मगर नीयत और मेहनत तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसी दौरान एक पड़ोसी दुकान पर आकर कहता है कि पूरे बाजार में आज तुम्हारी दुकान की मिसाल दी जा रही है कि कैसे बिखरा हुआ कारोबार और खानदान एक साथ संभल गया। ये सुनकर आसिफ साहब की आंखें शुक्र से भर आती हैं। वो दिल ही दिल में दुआ करते हैं कि ये इत्तेहाद कभी कमज़ोर न पड़े। शाम को जब घर लौटते हैं तो माँ की तस्वीर के सामने सब मिलकर दुआ करते हैं और आसिफ साहब कहते हैं कि आज अगर वो जिंदा होते तो तुम सब पर फख्र करते। इस लम्हे तीनों बेटे महसूस करते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने बाप को नहीं बल्कि अपने घर की रूह को भी वापस पा लिया है और यही एहसास उनके दिलों में एक नए अहद की बुनियाद रख देता है।
ऐसा अहद जिसमें माजी की गलतियां रहनुमाई बन चुकी थीं और मुस्तकबल एतमाद, मोहब्बत और एक दूसरे के सहारे रोशन दिखाई देता था। इसी शूर के साथ दिन गुजरते चले जाते हैं और ये तब्दीली सिर्फ घर और दुकान तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरे खानदान के रवैयों में झलकने लगती है। रिश्तेदार जो कभी नाराजगी और फासले की वजह से कम आना जाना रखते थे, अब दोबारा करीब आने लगते हैं। एक दिन खानदान की एक मुश्तरका बैठक होती है जहां आसिफ साहब सबके सामने अपने बेटों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि इस इत्तेहाद में है जो मुश्किल वक्त में इंसान को संभाल लेता है। ये सुनकर तीनों बेटों के दिल फख्र और जिम्मेदारी के एहसास से भर जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि अब इन पर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस खानदान की मिसाल कायम रखने की जिम्मेदारी भी है। शामिर खामोशी से फैसला करता है कि वो अपनी तेज मिजाजी पर काबू रखेगा। अलमीर ये अहद करता है कि हर बात में अना के बजाय समझदारी को जगह देगा। और तीसरा भाई दिल ही दिल में सोचता है कि वो अब कभी खुद को अलग थलग नहीं करेगा। आसिफ साहिब सबको देखते हुए कहते हैं कि याद रखो, जिंदगी में आजमाइशें दोबारा भी आएंगी, मगर अगर नीयत साफ और दिल जड़े रहें तो कोई तूफान घर को बखेर नहीं सकता। उस लम्हे सबके चेहरों पर एक खामोश यकीन उभरता है, ऐसा यकीन जो माजी के जख्मों से नहीं बल्कि सीखे गए सबक से पैदा हुआ था। और यूं ये खानदान एक नए सफर पर गामजन हो जाता है जहां हर कदम पर माजी की गलतियां रहनुमाई बनकर साथ चलती हैं और मुस्तकबल उम्मीद, सब्र और बहमी एतमाद की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता शक्ल अख्तियार करने लगता है। चंद महीने बाद एक दिन आसिफ साहब दुकान में बैठे पुरानी रजिस्टर खोलते हैं जिसमें उनकी जवानी के दिनों का हिसाब लिखा होता है। वो सफ़हात पलटते हुए रख जाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं कि वक्त इंसान से बहुत कुछ छीन लेता है, मगर अगर नीयत दुरुस्त हो तो वही वक्त सब कुछ लौटा भी देता है। तीनों बेटे उनके गिरद बैठ जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उस रजिस्टर में सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि मेरी जिंदगी के फैसले दर्ज हैं। कहीं सब्र है, कहीं गलती और कहीं अल्लाह पर भरोसा। वो समझाते हैं कि कारोबार बढ़ाना आसान है मगर किरदार बनाना मुश्किल। अगर तुमने किरदार बचा लिया तो नुकसान भी फायदा बन जाता है। उसी दौरान एक नौजवान मुलाजिम आकर कहता है कि उसने कहीं और बेहतर तनख्वाह की पेशकश ठुकरा दी है क्योंकि यहाँ इज्जत और सीखने का मौका मिलता है। ये सुनकर आसिफ साहब की आंखों में खामोश खुशी उतर आती है और वो बेटों से कहते हैं कि देखो, जब नीयत साफ हो तो असर सिर्फ घर तक नहीं रहता, बाहर तक जाता है। शाम को दुकान बंद करते हुए वो फैसला करते हैं कि आइंदा हर जुमे को सब मिलकर बैठा करेंगे, हिसाब भी देखेंगे और दिलों का हाल भी, ताकि कोई बात दिल में जमा न हो। उस लम्हे तीनों बेटे महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक कारोबारी उसूल नहीं बल्कि रिश्तों को जिंदा रखने का तरीका है। और यूं उन्हें यकीन हो जाता है कि यह सफ़र अब वक्ती जज्बात का नहीं बल्कि मुस्तकिल शऊर, जिम्मेदारी और एक दूसरे के साथ चलने का नाम है, जिसमें हर दिन एक नई आजमाइश नहीं बल्कि एक नया मौका बनकर सामने आएगा। आसिफ साहिब की जिंदगी के ये दिन न सिर्फ उनके लिए बल्कि तीनों बेटों के लिए भी सबक आमोज बन चुके थे। अब वो रोजाना दुकान में बैठकर सिर्फ कारोबार की देखभाल नहीं करते बल्कि अपने बेटों को भी अमली सबक देते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ कैसे कायम रखा जाए। वो उन्हें बताते हैं कि दुकान की कामयाबी सिर्फ मुनाफे में नहीं बल्कि एतमाद, ईमानदारी और वफादारी में है। एक दिन दुकान में एक पुराना गाहक आता है और आसिफ चंद हफ्तों बाद दुकान और घर की फजा में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी। आसिफ साहिब अब पहले की तरह थकावट के साथ बैठने के बजाय हर सुबह तवानाई से दुकान की तैयारी में शामिल होते हैं। वो तीनों बेटों को न सिर्फ कारोबार के उसूल सिखाते हैं बल्कि ये भी समझाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी एक दूसरे के आतिमाद और एहतराम को बरकरार रखना है। एक दिन दुकान में एक नया गाहक आता है और पूछता है कि यह खानदान कैसे इतने मुनज़्ज़म और मुतहद नजर आ रहा है। आसिफ साहिब मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि ये सब मेहनत और तरबियत का नतीजा है, मगर असल जादू वो है जो दिलों में मोहब्बत और समझदारी पैदा करती है। उसी दौरान तीनों बेटे अपने बाप की बातों को अमली शक्ल देने लगते हैं। शामिर अब तेज फैसला लेने से पहले सोचता है, अलमीर हर मसले पर पहले बात सुनता है और तीसरा भाई भी अपनी अना पर काबू पाने लगा है। एक शाम दुकान बंद करते वक्त आसिफ साहब सबको जमा करके कहते हैं कि तुम लोग जान लो, दुकान की कीमत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसमें तुम्हारे मेहनत, तुम्हारी लगन और खानदान की हिफाजत का जज्बा है। ये सुनकर तीनों बेटे एक दूसरे को देखते हैं और दिल ही दिल में फैसला करते हैं कि अब न सिर्फ कारोबार
बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत रखेंगे। उसी दौरान आसिफ साहब महसूस करते हैं कि उनका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया है, क्योंकि वो न सिर्फ अपनी मेहनत की पहचान वापस पा चुके हैं, बल्कि ये भी जान चुके हैं कि उनके बेटे अब संभल गए हैं। मादी की तलखी और दूरियां रफ्ता रफ्ता कमज़ोर हो गई हैं और घर में मोहब्बत, सुकून और इत्तेहाद की खुशबू हर कोने में फैल गई है। और यूं ये खानदान एक मजबूत, बेहमी समझदारी और खुशियों भरा मुस्तकबल बनाने के लिए तैयार हो गया है। आसिफ साहब के दिल में एक गहरा सुकून और इत्मीनान पैदा हो गया था। वो अब सिर्फ दुकान के इंतज़ाम तक महदूद नहीं रहते, बल्कि अपने बेटों के किरदार, उनके रवैयों और ताल्लुकात की तरबियत में भी बराबर शरीक होते हैं। हर सुबह वो दुकान के सामने खड़े होकर बाजार की रौनक देखते हैं और अपने बेटों को बताते हैं कि असली कामयाबी वो नहीं जो पैसा कमा कर हासिल हो, बल्कि वो है जो इंसान की मेहनत, सब्र और बाहमी मोहब्बत से हासिल हो। एक दिन दुकान में एक छोटा तनाज़ा होता है, मगर अब तीनों भाई पुरानी अना और गुरूर को पीछे रखकर मिल बैठकर हल निकालते हैं। आसिफ साहब ये मंजर देखकर खामोशी से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताली उनके बेटों के दिलों में ये इत्तेहाद और भाईचारा हमेशा कायम रखे। शाम को दुकान बंद करने के बाद वो सब घर आकर माँ की तस्वीर के सामने बैठते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, हंसने और बात करने के दौरान एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं और मादी की तलखियों को सबक के तौर पर याद रखते हैं। आसिफ साहब ये महसूस करते हैं कि अब न सिर्फ दुकान बल्कि घर में भी अमन, सुकून और बाहमी एहतराम का माहौल कायम हो गया है। तीनों बेटे दिल ही दिल में अहद करते हैं कि अब कभी इख्तिलाफ और लड़ाई उनके रिश्तों को कमज़ोर नहीं करेगी, और यूं ये ख़ानदान न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जज्बाती और अखलाकी तौर पर भी मजबूत होकर एक नए दौर में कदम रखता है, जहां हर दिन एक सबक और हर लम्हा मोहब्बत और समझदारी की बुनियाद पर जिया जाता है। आसिफ साहब की ज़िंदगी में आने वाली ये तब्दीली अब मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो रही थी। दुकान की रौनक और घर के माहौल में एक खुशगवार हम आहंगी पैदा हो गई थी। अब वो न सिर्फ अपने बेटों के कारोबारी फैसलों की रहनुमाई करते हैं, बल्कि उनके दिलों और सोच को भी समझते हैं। वो अख्तर उसी उम्मीद और अज़म के साथ एक दिन आसिफ साहब अपने बेटों को बाजार के एक कोने में बनी छोटी सी चाय की दुकान पर ले जाते हैं, जहां वो कभी अपनी जवानी में मजदूरों के साथ बैठकर मुस्तकबल के ख्वाब बुना करते थे। वो वहां बैठकर मासी के किस्से सुनाते हैं कि कैसे एक वक्त था जब हाथ खाली थे मगर दिल हौसले से भरे हुए थे। वो कहते हैं कि इंसान जब अकेला चलता है तो थक जाता है, मगर जब साथ मिल जाए तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। शामिर खामोशी से सुनता रहता है और फिर एतराफ़ करता है कि अब्बा, हमें आपकी ये बात अब जाकर समझ आई है कि ज़द में जीत नहीं होती, जीत सिर्फ रिश्ते बचाने में है। अलमेर भी कहता है कि अगर हमने वक्त पर खुद को न बदला होता तो शायद ये सब दोबारा मुमकिन न हो पाता। आसिफ साहब मुस्कुराकर इन दोनों को देखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें वक्त पर शऊर दे दिया। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। वापस दुकान आकर वो एक नया बोर्ड लगाते हैं जिस पर एक सादा सा जुमला लिखा होता है, यहाँ दियानतदारी और एहतराम के साथ कारोबार होता है। ये जुमला सिर्फ गाहकों के लिए नहीं बल्कि खुद उनके लिए भी एक अहद बन जाता है। दिन ढलते हैं, दुकान की रौनक बढ़ती है, मगर उससे ज्यादा जो चीज़ मजबूत होती जाती है वो उनके दिलों का रिश्ता होता है। और आसिफ साहब दिल ही दिल में महसूस करते हैं कि अब अगर जिंदगी आज भी उनसे सब कुछ छीन ले तो उन्हें कोई अफसोस न होगा, क्योंकि उन्होंने वो पा लिया था जो सबसे कीमती था। एक बिखरा हुआ खानदान जो अब इत्तेहाद, समझदारी और मोहब्बत के साथ दोबारा जुड़ चुका था। वक्त ने एक और मोड़ लिया और इस मोड़ पर आसिफ साहब खुद को पहले से ज्यादा मुतमईन और पुरस्कून महसूस करने लगे। अब दुकान की पहचान सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां लोग मशूरा लेने, दिल का हाल कहने और एतमाद के साथ लेन देन करने आते थे। एक दिन एक नौजवान गाहक अपने वालिद के साथ दुकान पर आता है और आसिफ साहब से कहता है कि वो भी अपने वालिद के साथ कारोबार करना चाहता है मगर इख्तिलाफात की वजह से डरता है। आसिफ साहब मुस्कुराकर उसे अपने करीब बैठाते हैं और कहते हैं कि इख्तिलाफ फितरी है मगर दिलों में कुदूरत रखना इंतखाब है। अगर बात वक्त पर कर ली जाए तो बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। वो अपनी मिसाल देकर समझाते हैं कि खामोशी ने उन्हें कितना नुकसान दिया और गुफ्तगू ने कैसे सब कुछ जोड़ दिया। ये बात सुनकर तीनों बेटे फख्र से अपने बाप की तरफ देखते हैं, क्योंकि आज उनके वालिद सिर्फ उनके नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहनुमाई बन चुके थे।
शाम को घर आकर आसिफ साहब अपने कमरे में बैठकर पुरानी डायरी लिखते हैं, जिसमें वो दर्ज करते हैं कि आज मैंने सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपनी गलतियों से सीख कर दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वो डायरी बंद करते हुए दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ये मौका दिया कि वो अपनी जिंदगी के तजुर्बे को किसी के काम ला सकें। इस रात घर में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दिल मुतमईन हो कि अब ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं बल्कि एतमाद, मोहब्बत और समझदारी की मजबूत बुनियादों पर खड़ा है। और यही बुनियाद आने वाले वक्तों में उस खानदान को हर आजमाइश में संभालने वाली थी। उसी मजबूत बुनियाद के साथ एक दिन आसिफ साहब बाजार की मस्जिद में असर की नमाज के बाद बैठे होते हैं तो चंद लोग उनके गुर्द जमा हो जाते हैं। कोई दुकान के मामलात पूछता है तो कोई घरेलू मसले का जिक्र छेड़ देता है। आसिफ साहब बड़े तहम्मुल से सबकी बात सुनते हैं और कहते हैं ये इत्मीनान वक्त के साथ मजीद गहरा होता चला जाता है। और आसिफ साहब अब खुद को आने वाले कल के लिए बेफिक्र महसूस करने लगते हैं। एक शाम वो तीनों बेटों को घर के सहन में बैठाकर नहायत संजीदगी से कहते हैं कि जिंदगी का हर मरहला इंसान को किसी न किसी तैयारी की तरफ ले जाता है। मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितना वक्त बाकी है, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम तीनों अब एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन चुके हो। वो उन्हें समझाते हैं कि दुकान एक अमानत है और रिश्ता उससे भी बड़ी अमानत। अगर कभी इन दोनों में टकराव आए तो हमेशा रिश्ते को बचाना, क्योंकि कारोबार दोबारा खड़ा हो सकता है मगर टूटे हुए दिल बहुत मुश्किल से जड़ते हैं। ये बात सुनकर तीनों बेटे जज्बाती हो जाते हैं और शामिर कहता है कि अब्बा, हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ आपके बनाए हुए उसूलों पर चलेंगे बल्कि एक दूसरे की कमजोरी को ताकत बनाएंगे। अलमीर भी कहता है कि हमने तय किया है कि हर बड़े फैसले में आपकी सिखाई हुई दियानत और सब्र को सामने रखेंगे। आसिफ साहब ये सब सुनकर खामोशी से आसमान की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में शुक्र के आंसू आ जाते हैं। उस लम्हे सहन में एक अजीब सा सुकून फैल जाता है, जैसे आने वाला वक्त किसी खामोश यकीन के साथ इन सब के कदमों की राह देख रहा हो। और आसिफ साहब दिल ही दिल में महसूस करते हैं कि अब अगर जिंदगी उन्हें किसी भी मोड़ पर बुला ले तो वो मुतमईन होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। एक बिखरा हुआ घर जो अब इत्तेहाद, समझदारी और मोहब्बत के सहारे मजबूती से खड़ा था। कुछ ही दिन बाद एक गैर मुतवक्का खबर पूरे घर में खामोशी ले आती है। जब डॉक्टर आसिफ साहब को मजीद आराम और एहतियात का मशवरा देते हैं, ये बात सुनकर तीनों बेटों के दिल घबरा जाते हैं, मगर वो इस बार घबराहट को कमजोरी नहीं बनने देते, बल्कि बारी बारी अपने वालिद के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। कभी दुकान का हाल सुनाते हैं और कभी घर की छोटी छोटी खुशियों का जिक्र करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। आसिफ साहब बिस्तर पर लेटे हुए इन सबको देखते हैं तो दिल ही दिल में सोचते हैं कि यही वो मंजर है जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की थी। एक दिन वो कमजोर सी आवाज में कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस बात की है कि तुम तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं। शामिर उनका हाथ मजबूती से थाम कर कहता है कि अब्बा, हमने आपसे वादा किया है और हम उसे निभाएंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। अलमीर आंखों में आंसू लिए कहता है कि आप हमारे लिए सिर्फ बाप नहीं बल्कि हमारी पहचान हैं। हम आपकी दी हुई तरबियत को कभी ज़ाया नहीं होने देंगे। इस लम्हे कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है, मगर ये खामोशी उदासी की नहीं बल्कि एक पुख्ता यकीन की होती है। वो यकीन कि रिश्ते अब कमज़ोर नहीं रहे, कि आजमाइश आई भी तो ये खानदान बिखरेगा नहीं। और आसिफ साहिब आंखें बंद करते हुए दिल में शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें जिंदगी के इस मरहले पर वो सुकून अता कर दिया है जिसकी तमन्ना हर इंसान करता है। एक ऐसा सुकून जो मोहब्बत, इत्तेहाद और एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसे से जन्म लेता है। इसी रात जब घर की फजा गैर मामूली तौर पर खामोश होती है तो आसिफ साहब की सांसें हल्की हल्की चल रही होती हैं। तीनों बेटे बारी बारी उनके पास बैठकर उनका हाल पूछते हैं, कभी पेशानी पर हाथ रखते हैं तो कभी कंबल दरस्त करते हैं। इस खामोश खदमत में वो मोहब्बत बोल रही होती है जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। फजर के करीब आसिफ साहब आंखें